Now dear, question number 21. This also came in NDA, correct? This is I think 2018 April somewhere. See, in question given, if x and y are different complex numbers with modulus y is 1, then you have to find the mod of y minus x, 1 minus x bar into 1, correct? So first of all, mod y is given to be 1, fine? So all of you know mod y is 1, so if I square it both sides, so this is also 1. And mod y square, what you can write? Y into y bar, correct? Z into z bar is mod z square, that we know the property between conjugate and modulus, correct? Z into z bar is mod z square. This we have written in the property of modulus and conjugate of a complex number. So this is y by 1 is equals to 1, correct? Now we will enter to this demand. Here it is y minus x upon 1 minus x bar into y it is written, fine? So look at this, in place of 1, can we write y bar? So y minus x I have kept it as it is as, in place of n I am going to write y bar minus x bar 1, correct? Now I am going to take y common and will take out. So 1 by mod y is outside. All of you know mod a into b can be written as mod a into mod b, fine? So this way I can split 1 upon mod y taken outside, left with mod y minus x upon mod y bar minus x bar, correct? And what I did, mod z1 upon mod z2, all of you know this is mod z1 upon z2, correct? So these are properties of modulus and conjugate that we have to remember. So now we have 1 upon mod of magnitude of y is how much? It is 1. So this is going to be 1. Now look at this, y minus x. Here what we can write? Y minus x पे conjugate पूरा लिख सकता हूँ मैं. All of you know conjugate of x minus y is x bar minus y bar. This is again a property of a conjugate. So this we can write. Now mod of z bar is same as mod z, correct? So what will happen? This and this get cancelled, so left with 1. So 1 is the correct answer. So in such problem, what are those information you require? See, these results you require. If you remember these results, then only you will be able to solve such problems. And that is why NDA asks such basic question where you require this basic knowledge of complex number. So इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी आप अच्छे से दिमाग में रखिए, मॉडुलस के, आर्ग्यूमेंट के एंड कॉन्जुगेट के, ठीक है? अगर आप प्रॉपर्टी अच्छे से समझते हैं तो ऐसे सम आप इजीली कर सकते हैं, करेक्ट डियर? सो गो थ्रू y माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बार वाई, मॉड y 1 दी हुई थी, मॉड y को दोनों तरफ स्क्वायर किया, सो मॉड y स्क्वायर रिटर्न एज y इंटू आई बार ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, करेक्ट? सो मॉड y स्क्वायर इज 1 और y बाई बार इक्वल्स टू 1. सो नाउ क्वेश्चन में y माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बार वाई, सो इस 1 के लिए y बाई बार यूज किया, फिर हमने y कॉमन निकाल लिया यहाँ के इस प्रॉपर्टी से, मॉड a इंटू बी, मॉड a इंटू मॉड बी, सो 1 बाई मॉड a केम हियर, बार माइनस एक्स बार लेफ्ट, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, मॉड y की वैल्यू, सो 1 एंड y माइनस, और ये बार हमने इस प्रॉपर्टी से स्प्लिट किया, करेक्ट? x बार माइनस y बार इज x माइनस y पे होल बार, सो दिस होल बार केम एंड फाइनली मॉड ऑफ z बार इक्वल्स टू मॉड z, करेक्ट? ये होता है कैसे? z अगर x प्लस आई वाई है तो उसका भी मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर z x माइनस आई वाई भी है तो भी उसका मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये भी एक प्रॉपर्टी थी. सो लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 basic properties of complex number we have used in this type of a problem, correct? It's not so simple. अगर बच्चों को ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो ये सम करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी. एंड दिस सम केम इन एनडी, करेक्ट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. लुक एट दिस. Question number 22 was, find the modulus of this z. Z equals to 1 minus I root 3 upon 2 into 1 minus I into cos theta
प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इस पूरे की हमें मॉडुलस चाहिए। तो मॉड की प्रॉपर्टी से आपको पता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2 कर सकते हैं। तो ये मॉड ऑफ 1 माइनस आई रूट 3 कर दिया। मॉड ऑफ 2 कांस्टेंट ले सकते हैं 1 माइनस आई, ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं आप, इनटू मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड मॉड ऑफ cos theta minus I sin theta. So what we have done, we have used the property of mod. mod की हमने प्रॉपर्टी लगा दी, mod z1 by z2, mod z1 upon mod z2, mod z1 into z2, ये सारे प्रॉपर्टीज हमने लगा दिया। करेक्ट है। Now from here I believe all of you understood इसकी मॉडुलस क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, इसकी हो जाएगी रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। इसका मॉडुलस आ जाएगा डियर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। दिस गेट कैंसल, व्हाट लेफ्ट 2 अपॉन 2 रूट 2 एंड विच इज 1 by रूट 2. So the correct option was A. A was the correct option. See, they have asked modulus. तो modulus is simple. Anyone can calculate modulus. बट उन्होंने फंक्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉस वगैरह डाल दिया, तो डरना नहीं है। मॉड की प्रॉपर्टी है मॉड z1 बाई मॉड z2 इंटू मॉड z1 बाई मॉड z2 कर सकते हैं। अगर पूरे में आप मॉड z लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप मॉड z पहले तो इसको और इसको अलग कर लिया मॉड से, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मॉड में अलग कर लिया, कांस्टेंट इवेंट कीप आउटसाइड, ये टोटल 2 कांस्टेंट जब बाहर है कॉम्प्लेक्स से, एंड मॉड दिस अपॉन मॉड दिस, and then it becomes simple. So again smart approach कि आप मॉड की प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं, then only you can solve such problems. समझे डियर। मॉड की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से यूज करने हैं डियर। आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड में आप a प्लस आई भी बनाने मत निकल जाओ। अगर इस सबको a प्लस आई भी बनाने जाओ तो बनेगा भी नहीं, फाइन, वो e टू द पावर आई थीटा आइलर्स रिजल्ट भी हो चला जाएगा। सिंपली मॉड के प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, फाइन। तो ऐसे क्वेश्चन के मॉडुलस भी पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू बी अलर्ट विद दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अगर आप करते हो अच्छे से तो यू कैन गेट द आंसर। नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 23। I believe all of you have kept it question in front of you while looking the solution, so then you will understand. ठीक है, जब ये सोल्यूशन देख रहे हैं वीडियो तो आप क्वेश्चन सामने रहने चाहिए डियर, तो आपको समझ में क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा था कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस आई cos 2x एंड cos x माइनस आई sin 2x और कॉन्जुगेट टू ईच अदर, देन x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो लेट्स से दिस इज z, तो ये z बार हो गया, करेक्ट। अगर मैंने z इसको लिया इस कॉम्प्लेक्स को और उसका कॉन्जुगेट ये कह रहा है, तो z बार हो गया ये cos x माइनस आई sin 2x, करेक्ट। अब ये दोनों इक्वल दी हुई है, z इक्वल्स टू z बार, सो व्हाट वी कैन राइट sin x प्लस आई cos 2x इक्वल्स टू cos x माइनस आई sin 2x, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकता हूँ, सो आई कैन राइट sin x इक्वल्स टू cos x और cos 2x इक्वल्स टू sin 2x, करेक्ट। और मैं लिख सकता हूँ tan x इक्वल्स टू 1 और tan 2x इक्वल्स टू दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। डिवाइड कर दिए, 1 लेफ्ट, डिवाइड कर लिया। नाउ दिस विल गिव यू x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड दिस विल गिव यू x इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 8, फाइन, पाई बाय 8। ये x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 दे रहा है और ये x इक्वल्स टू पाई बाय 8 दे रहा है, करेक्ट। जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 और ये भी पाई बाय 4 होनी चाहिए थी, देन ओनली दिस रिलेशनशिप विल सेटिस्फाई। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? सो डी ऑप्शन, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दीज टू रिलेशन। z इक्वल्स टू z बार नहीं होने देगा, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज सी यहाँ पे एक में पाई बाय 4 और एक में पाई बाय 8 आ रहा है, करेक्ट। सो इट वोंट पॉसिबल कि x पाई बाय 4 और पाई बाय 8 तो पॉसिबल ही नहीं है।
that means there is no value of x which satisfy this relationship for this particular problem. Clear here? तो ये कॉन्जुगेट के ही बेसिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी अटैच किया गया है. सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डियर कैसा होता है कि जो एक टॉपिक के अंदर 2 से 3 टॉपिक को मिक्स कर दी जाती है. जैसे कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स कर दी जाएगी, इनवर्स भी मिक्स कर दी जाएगी. ठीक है, तो ऐसे सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाए जाते हैं. ऐसा नहीं कि प्लेन कॉम्प्लेक्स है, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के सम्स कर रहे हैं, वो तो करना ही है. बट जो मिक्सचर वाले प्रॉब्लम होते हैं दैट यू मस्ट हैव टू डू. करेक्ट, मिक्सचर वाले प्रॉब्लम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ज्यादा डिमांड में होते हैं. तो जिसमें कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट चाहिए. ठीक है, कॉम्प्लेक्स देखा आपने तो ये चीज थोड़ा केयरफुल रहना. आप मिक्स्ड प्रॉब्लम आप अच्छे से करा करें. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. See, look at this. In question number 24, again the question is from conjugate only. Question थी कि if -3 plus ix square y and x square plus y plus 4i be conjugate to each other, then what are the values of x and y ordered pair में. ठीक है डियर, हमें x और y ordered pair में आंसर चाहिए और ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी है. क्लियर? सो अगेन ये अगर कॉम्प्लेक्स है -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4i. करेक्ट, ये अगर z है तो ये z बार है. फाइन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो इसके i को मैंने माइनस से रिप्लेस कर दिया कॉन्जुगेट में. दिस इज व्हाट वी डू. अब इस रिलेशनशिप से हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. तो ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे आप. एक्स स्क्वायर प्लस वाई इट इज ना. ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज -3 एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू -4. ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो इससे हम अब सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू 1 और -4 आएगी. सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बेसिक अलजेब्रा यूज करते हैं एंड x वी विल गेट 1 एंड -1. तो हमारे पास पेयर हो गया 1 1 एंड 1 1 1 -4. ठीक है, -1 1, ऐसे भी आप पेयर बना सकते हैं. तो जो ऑप्शन में दी हुई है दैट ऑप्शन विल टेक विच इज 1 -4. सो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन ए. ठीक है, पेयर्स तो आएंगे बहुत सारे, बट जो ऑप्शन में दी हुई है 1 -4 इज द करेक्ट आंसर. तो सेम वे इसका जेड और जेड बार दी हुई थी, दोनों इक्वल था. हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया और एक्स और वाई को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली. अब उसमें से जो पेयर बनाना है 1 -4 विच इज अवेलेबल इन द ऑप्शन. ठीक है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा. फाइन डियर. सो बेसिक इट इज क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट दी हुई थी, बट केयरफुली ये सब यहाँ पे अलजेब्रा आपको करना है. ठीक है, जो अच्छे से करेंगे देन यू विल मैच द ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट आते हैं 25th क्वेश्चन नंबर 25. I believe most of the question all of you have done, but still कुछ बच्चों को अगर लग रहा है तो एक बार ये सोल्यूशन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए एंड डू योरसेल्फ वंस अगेन. ठीक है, दीज आर सम कलेक्टिव क्वेश्चंस जो इट यूज टू कम इन एनडी. करेक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़े आप स्मार्टनेस दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 25. इफ b plus I c is 1 plus a into z and a square plus b square plus c square equals to 1, then 1 plus I z upon 1 minus I z is. सो अगेन ये सबको करते समय कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है. थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है नो डाउट, बट इट्स ए डूएबल प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं. ठीक है, आइए इसमें जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. पहले तो हम यहाँ से z को कैलकुलेट करेंगे. z इज b प्लस आई सी अपॉन 1 प्लस ए. करेक्ट, ये आ गया z. ठीक है, अगर मैं आई जेड की बात करूँ, z चाहिए तो मुझे इसमें आई जेड भी चाहिए.
सो आई जेड इज गोइंग टू बी, आई से इंटू हो जाएगा, सो आई बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए. So Z is this and IZ came this one. Now we will substitute into the our demand. इस demand में substitute करेंगे. So 1 plus IZ हो गया ये IB minus C upon 1 plus A upon 1 minus IZ. So this is IB minus C upon 1 plus A. Fine. ये हमने अपनी demand में डाल दिया. अब इसे simplify करना है. LCM लीजिए 1 plus A plus IB minus C, and here it is 1 plus A minus IB and minus plus C. Correct? Up to here clear here. LCM लिया 1 plus A get cancel. अब रियल और इमेजिनरी को एक साथ क्लब करिए. So 1 plus A minus C plus IB ऐसे रखा हमने, और यहाँ पे डियर 1 plus A plus C minus IB. Fine till here. अब मैं नीचे वाले के हमेशा कॉम्प्लेक्स में नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो हमने यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस सी प्लस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. करेक्ट. अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, पर डरना नहीं है. यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो ये तो क्लियर है. ए प्लस बी ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. And then we have to expand a square 1 plus a plus c का whole square, जो a plus b plus c का whole square होता है. That you have to break. Correct? वो break करना पड़ेगा. इसको आप इंटू करते हैं, इन सभी को आप इंटू करते हैं, तो somewhere the final values जो है numerator is going to be a square plus a plus I ab plus ib. Correct? ये न्यूमरेटर आएगा, और डिनोमिनेटर में वैल्यू a प्लस बी आई बी ए माइनस आई बी करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस वैल्यू को भी ब्रेक करते हैं. सो वी विल हैव 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए मिलेगा. सॉरी, ठीक है. 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस सी, जिसके अंदर डियर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये 1 वहां पे सब्स्टिट्यूट हुई होगी. ठीक है, ये वैल्यू वहां गया होगा. हाँ, जब स्क्वायर करोगे ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां जहां होगी वहां पे 1 डाल दिया, तो ये हमें फाइनल मिल गया. अब यहाँ पे हम थोड़े कॉमन वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ए कॉमन ले लीजिए, ए प्लस 1, हियर यू टेक आई बी, सो यू हैव ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में ऑल्सो 1 प्लस ए, एंड सी कॉमन लिया तो डियर 1 प्लस ए. फाइन. सो a plus 1 cancel from everywhere. So what left? A plus IB upon 1 plus C. This option is your A option. आंसर में देख लो आप, A ऑप्शन था. तो ये काम जो है यहाँ पे इंटू करना वो वही इंपॉर्टेंट है. यहाँ इंटू करेंगे, और जब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जहां जहां आएगा वहां पे यू पुट 1. So after substituting this you have this, and after simplifying you will get a plus ib upon 1 plus c. करेक्ट है. तो इन सबों पार्ट में ये जो कैलकुलेशन है, अगेन दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, दे ऑल्सो डू मिस्टेक. तो यहाँ पे अच्छे बच्चे हों या बच्चे जो धीरे धीरे समझते हैं, उनके लिए है कि ये प्रैक्टिस करें ऐसे प्रॉब्लम. करेक्ट. इस तरह के प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस, बिकॉज सी nobody knows which type of a question is going to come, but these sums once it came, so we have experience of such problems to how we can solve such problem. ठीक है ना. तो ऐसे प्रॉब्लम को आप घर पे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. These are not, एक लास्ट होमवर्क में भी मैंने एक प्रॉब्लम दी थी, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी में, जहाँ पे मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 लिखा था. That sum also is similar approach. यहाँ पे एक एंट्री प्लस सी स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है थोड़ा बढ़ गया. ठीक है. So this way we can solve such problem. So dear, our 13 to 25 we have completed. Now the rest, this 25 to 30, we'll see now. Correct? Question number 25 से 26 से 30 की ओर जाते हैं. Look at this.
Question number 26 to 30 now. We will solve 26 to 30.